ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਵਡਹੰਸ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦੱਖਣੀ ਸੱਚ ਸਿਰੰਦਾ ਸੱਚਾ ਜਾਣੀਐ, ਸੱਚੜਾ ਪਰਵਦਗਾਰੂ। ਜਿਨ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਆ, ਸੱਚੜਾ ਅਲਖ ਅਪਾਰੂ। ਦੋਏ ਪੁੜ ਜੋੜ ਵਿਛੋੜਿਆ ਨਾ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰੋ। ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਸਿਰਜਿਆ ਨਾ, ਅਹਨਿਸ ਚਲਤ ਵਿਚਾਰੋ। ਸੱਚੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਤੂੰ, ਸੱਚੜਾ ਦੇਹ ਪਿਆਰੋ। ਰਹਾਉ ਤੁਧ ਸਿਰਜੀ ਮੇਦਨੀ, ਦੁਖ ਸੁਖ ਦੇਵਨ ਹਾਰੋ। ਨਾਰੀ ਪੁਰਖ ਸਿਰਜੀਐ, ਬਿਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਿਆਰੋ। ਖਾਣੀ ਬਾਣੀ ਤੇਰੀਆ, ਦੇਹ ਜੀਆਂ ਆਧਾਰੋ। ਕੁਦਰਤ ਤਖਤ ਰਚਾਇਆ, ਸੱਚ ਨਿਬੇੜਨ ਹਾਰੋ। ਖਾਣੀ ਬਾਣੀ ਤੇਰੀਆ, ਦੇਹ ਜੀਆਂ ਆਧਾਰੋ। ਕੁਦਰਤ ਤਖਤ ਰਚਾਇਆ, ਸੱਚ ਨਿਬੇੜਨ ਹਾਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਿਜ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਜਦ ਆਪ ਸਾਵਧਾਨ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋਏ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਮਹਿਰਮਤਾਂ ਤੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਤੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਏ ਹੋ। ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਨਿਰਮਲ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਾਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਖਸ਼ਣ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਸੀਸ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਕੇ ਜਪਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਵਾਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨ ਰਹਿਣ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਾਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ।
ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਟਿਕ ਜਾਏ। ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ, ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ, ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲੋ, ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੁਮਰੇ ਤਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਿ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰਕਰਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਰੂਪ 'ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਗਹਿਰੇ ਹਿਰਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਕਰਤੇ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਗੁਰਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਮਨ ਦਾ ਡੋਲਣਾ ਰੁਕਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਭਟਕਣਾ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਕਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੇਖੀ ਟਿਕਾਓ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਜੋ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧ ਜਾਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆਪੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ। ਅਸਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਤਨਾ ਕਰ ਪਾਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਤਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦਾਵਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਲੈ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਤਨਾ ਆਪ ਨੇ ਤਾਣ ਆਪਣੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਤਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੰਪੂਰਨਤਾ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਮਿਟਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀਆਂ ਮਿਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋ ਆਸ਼ਚਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੌਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੌਤ ਦਾ ਰਹੱਸ ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਉਹਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੇਵਲ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਦੱਸਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖਿਆਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੰਨਣਾ ਕਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਮੰਨੀਏ ਉਹ ਖਿਆਲ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਖੈ ਨਹੀਂ ਆਰ ਪਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਗੁਰਕਰਤਾ ਹੀ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਟੱਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ ਦਾਵਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਬਲ ਕਿੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਸ ਕਾਲ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਵਾਗਮਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਆਹ ਆਲਾਹਣੀਆਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਦਾ ਟਿਕ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਝ ਤੇ ਖੈਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਰਹੱਸਵਾਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ
जिन्ने को किसी ਨੂੰ समझ आ जाती है, ਜਾਂ ਕਰਤਾ जितना को किसी ਨੂੰ जता देंदा है उतना को समझ आ गई। जिवें सानू आ दीवार तक दिखाता गया, असीं दीवार तक देख लिया। हो सकता आने वाले 10-20 साल बाद दीवार हटा के होर परां करती जाए और अगला व्यक्ति आएगा होर 10 कदम दूर तक देख लेगा। और संभावना भी है कि दीवार उरा कोई होर पर्दा लगाता जाए, उन्होंने होर नज़र नहीं आएगा। समय दे नाल ऐसे पर्दे वधदे ते घटते रहिंदे ने जो वर्तमान विच व्यक्ति दे हत्थ विच नहीं हुंदे। उहदी मजबूरी हुंदी है कि वह पर्दे तक ही देखेगा, पर्दे तो पार की है नहीं देख पाएगा। पर पर्दे दे उरले पासे जो वरत रहा है वो साडा जीवन है, साडे जीवन दे नाल संबंधित है। पर्दे तो उरले पासे जो वरत रहा है उसनूं असीं कुदरती कह देने। अज फिर दोबारा महाराज जी ने नवे शब्द राही कुछ गल्लां फिर शुरुआत तो कीतियां। जगत गुरु गुरु नानक पातशाह साहिब दे पावन बचन राग वडहंस दे विच जो कीर्तनीय विचार ने उन्हां वास्ते संकेत है दखणी। दखणी का मतलब विचारक मंडल दे नाल नहीं है, ये संगीत धारा वालों ने पता है कि राग दे जो तरीके होंदे ने, जिवें इत्थे जिहड़े संगीत बारे जानते पता है घराणियां दे अपना अपना अंदाज हुंदा है। आ बनारस घराना है जी, आगरे का घराना है, ये राजपूताने का घराना संगीत है, ये पटियाले का संगीत घराना है। हौली हौली इस तरह ये घराने ने। इन्हां घराणियां तो अलावा कुछ इलाकियां का भी प्रभाव, क्योंकि बोलण का लहजा वखरा हुंदा है। वेखिया हुण असीं बोलण दे विच साडे आ जो आपां उत्तरी इलाका कह देने आ, जिस वक्त का पंजाब हरियाणा मेरठ तक का इलाका सारा हुंदा है। इत्थों दे बोलण का अंदाज़ ते दखण दे बोलण का अंदाज़ बड़ा फर्क है ना। साउथ इंडिया वाले टा शब्द बहुत प्रयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। संस्कृत का प्रभाव उन्हां ते ज़्यादा है, साडे तो उन्ना नहीं है। यही अंदाज़ राग दे विच है। इस अंदाज विच राग दखणी तरीके दे नाल महाराज जी अगर किसी ने गावना होवे इस शब्द नूं जो सुगड़ संगीत कीर्तनीय होवे तो दखणी अंदाज विच वडहंस नूं गा ले। इहदे विच देखिया होना इच अड़ा का प्रयोग महाराज जी ने राड़े का बहुता कीता है, क्योंकि दखण दे जो टा का प्रयोग है उन्होंने इत्थे टैंके के प्रयोग में बहुता वरतिया गया है। खैर संगीतक कलावां वास्ते है, पर साडे वास्ते गल महाराज ने फिर उत्थों की है। सच सिरंदा, सिरंदा का मतलब है सिरजनहार। सच नूं सच सिरजनहारा है, सच सिरंदा है। सारी कायनात नूं सिरजनहार कौन है? सच। सच ही सिरजाना है, सच ही परमात्मा है। वाहिगुरू जी का की स्वरूप है उहदे बारे असीं तुसीं कुछ नहीं कह पावांगे। गुरु पातशाह साहब जी ने वाहिगुरू जी के रूपां रंगां की व्याख्यावां नहीं कीतियां। वाहिगुरू जी के बाबत क्या वो सच है, उहदी होंद हैगा है, पर किहो जिहा सच है। वो ये नहीं कह भी नीला ते काला ते गोरा, चिट्टा है, वड्डा ते छोटा है, वो दुध के सागर चरिंदा जी, वो अग्नि के सागर चरिंदा, नहीं कोई मतलब। वो दुध विच भी है, अग विच भी है, शेषनाग ते भी है, कमल ते भी है। वो जिथे भी देखो उत्थे ही है। जत देखा तत तू, तुसीं जिथों देखो किते है, पर फिर भी कहते ने सच है। सच सिरंदा है, सच सिरजनहार है, सच रचना रचन वाला है। फिर की करिए? सच्चा जाणीए। ये गल समझ लो, वाहिगुरू ही संसार की सिरजना करने वाले ने, ते वाहिगुरू जी नूं ही सच करके समझ लो कि सारी रचना वाहिगुरू जी की रची हुई है। जदों रचना वाहिगुरू जी की रची हुई है तो फिर सानू उलामा दोष नहीं होना चाहिए ना। उलामा दोष तो तां होए जे मैं कुछ होर रचिया तो तुसां कुछ होर रचिया। जे साडा तुहाडा एक दूजे की कोई रचना होए तो असीं उलामा दे दईए भाई ये क्यों कीता। आ जिवें जिथों तक साडा जोर हुंदा है समाजिक परिवारक बनतरां दे विच, असीं एक दूजे नूं उलामा दे देने भाई तूं इदां क्यों कीता, इदां नहीं सी करना।
ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣ, ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਭ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਭਈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਨਾ ਕਰ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਂਗੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਆ ਸਾਮਾਨ ਇੱਥੇ ਨਾ ਟੰਗੋ, ਉੱਥੇ ਟੰਗ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਣਤਰ ਸਾਡੀ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਇਮਾਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਪਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਵੀ ਘੜੀ ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟੰਗ ਦਿਓ, ਆ ਲਾਈਟ ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਬਣਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟੰਗ ਦਿਓ, ਚੰਦਰਮਾ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਤਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਆ ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ ਮੰਡਲ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਆ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆ ਮੰਜੀ ਹੈ, ਪੀੜੀ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਬਣਤਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਮੰਜੀ ਦੇ ਪਾਵੇ ਦੇਖੋ ਦੂਰ ਨੇ, ਨੇੜੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਆ ਸਭ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ ਨੇ, ਨੇੜੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਰਾ ਅੱਗ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਤਾਰਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਲੰਮਾ, ਕੀ ਨਦਰ ਨੇ ਹਾ ਲਿਆ ਰਾਮ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੋਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਰੰਗ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਉਹਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਧਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲੋਗੇ ਕਰਤੇ ਦਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਭੀ ਨਾ ਦੇ 10 ਭੀ ਹਿਰ ਲੈ। ਇੱਕ ਕਹੋ ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਗਲਾ ਕੇ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਕਈਆਂ ਜਨਮਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਈ ਜਨਮਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਣ ਹੈ, ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੇ ਨੇ 20-20 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਮਾਂਦਰੂ ਤਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੰਬਾਈ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਵਜ਼ਨ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੰਬਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਨ? ਸਰੀਰ 'ਚ ਤਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਉਹਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਆਪ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਂ? ਕੁਛ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਗਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਕਰਤੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਕਰਤੱਵ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਲਾਮਾ ਮਤ ਦਿਓ। ਉਸਨੇ ਜੈਸੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ ਵੈਸੀ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਜੋ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ, ਵੈਸੀ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ, ਵੈਸੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਤ ਕਰੈ ਸੋਈ ਹਮ ਮਾਨਾ, ਮੀਤ ਕੇ ਕਰਤਬ ਕੁਸ਼ਲ ਸਮਾਨਾ। ਉਲਾਹਨ ਮੈਂ ਕਾਹੂ ਨਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਉਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਾਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਖੁਦਾ ਇਹ ਕੀ? ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਤੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਖੁਦਾ ਇਹ ਕੀ? ਉਹ ਬੇੜੀ ਡੁੱਬਣੋਂ ਬਚ ਗਈ, ਪਰ ਭੁੱਖਾ ਰਿਹਾ, ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਾਧੂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਧੂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ? ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਭੋਜਨ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਬੈਠਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਿਆ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਬਸ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਜਦੋਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ
तो मैं देखा इधर पिछे औड़ लगी हुई है, तो इधर मीह पै जे तो आ जी जंत हरिया भरिया हो जाएगा, समुद्र ते मीह पैण का की फायदा। तो मैं क्या खुदा ये की पानी ते पानी का की फायदा है। मीह रुक गया। कहन लगे अच्छा होर की अज की कीता जी। कहन लगे महाराज दूर देखिया एक समुद्री जहाज़ बेड़ा चल रहा सी, डक्को डोले खा रहे थे, मैनूं लगा डुब जाएगा। तो डक्को डोले खांदे मैं वेखिया तो मेरे मुँह फिर किया खुदा ये की। वो डक्को डोले खांदा खांदा जहाज़ बच गया। मैं खुश हो गया कि खुदा मेरी कहना मनदा है। कहन लगे खुदा तेरा कहना मनदा कि नहीं मनदा ये तो मैनूं पता नहीं, पर तू गुनाह बड़ा वड्डा कर बैठा है, इस करके तेनों भोजन नहीं मिल रहा। कहन लगा जी मैं की गुनाह कीता। कहन लगे खुदा दी मर्जी दरिया ते मीह पावे, खुदा दी मर्जी बरेते ते पावे, खुदा दी मर्जी शहर ते पावे, जंगल ते पावे, बाग तेरा की जांदा है। तू गृहस्थ छड्ड बैठा है, घर बार छड्ड बैठा है, किरत छड्ड बैठा है, पर मन की आकड़ नहीं छड्ड बैठा। मन दियां दलीलां ते तर्क उत्थे ले जां ते तू कहना कि आ खेती मेरी है, इत्थे मेरे बाग परिवार ने, भाई मेरे बाल बच्चे भुखे मरदे, जां ते एक है तेरे को ये भी कहण नूं तू कुछ नहीं करा, फिर तू कमबख्त है। एक वचन कौड़ा तो है, आपां रोज़ाना शाम नूं पढ़दे हो, करता पुरख वाहिगुरू जी के नाम नूं भुला देण तो बाद की हुंदा है? बाज नावै बाज सनात, जिहदी कोई औकात नहीं, कोई कीमत नहीं, कुछ पणतर नहीं, कुछ भी ते नहीं। गुरुदेव कृपा करन सानूं समझ आ जाए। अज कहन लगे भाई विश्वास रखो, सच सिरंदा, वाहिगुरू ही सिरजण है, जो सच सिरजण है, सच्चा जाणीए उसनूं ही सच्चा मनियो। बाकी मैं तुसीं एक दूजे नूं असीं की कहिंदे आ, क्यों कहिंदे आ, ये वक्ती है, लालच करके भी हो सकता है तो गुस्से करके भी हो सकता है। असीं एक दूजे नूं कदे लालच करके वड्डा वड्डा कहण लग पैने आ, तो किसी कोलों गुस्से हो जाए तो वड्डे नूं भी असीं छोटा छोटा कहण लग पैने। साडा कहना तो होना तो लालचां करके लोभां करके भी हो सकता है, पर सच जानना करता ही सिरजनहार है तो सच है। दूजी गल, अगली गल चेत रखे, सचड़ा परवदगारो, तो सारिਆਂ ਦੀ परवरिश भी उही कर रहा जे। मता कोई मान करे कि मैं पाल रहा अपने बच्चे, मैं अपनी परवरिश कर रहा, नहीं भाई, करता पुरख ही पाल रहे जे। आ पाउंटा साहिब साडे तो बहुता दूर नहीं है। इत्थों दी गाथावां दे एक निक्की जी घटना आउंदी है, इतिहास रस नाल संबंधित, पर इतिहास का अंग भी है। पटना क्षमा करना पाउंटा साहिब महाराज का दरबार सजदा है, संगत आउंदी मत्था टेकदी, अपने अपने उपदेश बचन प्राप्त करदी, दुख सुख दी गल्लां गुरु साहिब नाल साझीआं हुंदियां। एक सिख आउंदा है, नठा नठा आउंदा है, मत्था टेकदा भज जांदा है, नठा नठा आउंदा है, ना शब्द सुनदा, ना कहिंदा, ना सुनदा, कुछ नहीं, आउंदा जरूर है। महाराज ने एक बार कहा भाई आउंदे हो तो बैठिया करो, भी कीर्तन हो रहा हुंदा है तो कीर्तन सुन लिया करो, एक शब्द तो घट्टो घट्ट सुन लिया करो। शायद साडे बजुर्ग हुण तक यही कहते हैं कि भाई चल के आउंदे हो, घट तो घट 5-7 मिनट इत्थे बह जाओ। जे तुसीं 30-40 मिनट घरों तुर के इत्थे आ गए हो, ड्राइव करके आए हो, तो इत्थे 5-7 मिनट बैठन ते की अर्ज है? कुछ मिलेगा, बहते जाओ, बह के तो देखो, 5-5 मिनट बहना शुरू कर दो, आनंद शुरू हो जाएगा, गुरु की बाणी प्रभाव पाएगी। पर नहीं, बहुत साढ़े लोग बहुते लोग नहीं बैठे, नठे नठे आउंदे आ। ठीक है, असीं माड़ा तो नहीं कहिंदे भी क्योंकि दुआरे ते आउंदे महाराज दे, पर आउंदे भज्जे भज्जे आउंदे ते भज्जे भज्जे जांदे ने। महाराज ने भी कहा भाई बह जाया कर, सुनिया कर। ना महाराज बड़ी काली, बड़े दुख, बड़े दूर जाना, बड़े काम हुंदे ने। अच्छा, 2-4 दिन होर 10 दिन गुजर गए। महाराज ने फिर दोबारा कहा, ना गल खाने पई, महाराज जिम्मेदारियां बड़ियां, काम बड़े होंदे, सिर खुरकण दा वेल नहीं हुंदा। अच्छा, एक दिन एक चिट्ठी फड़ाती, कहने लगे किधर जाना है? कहने कि सढौरे चलिया। कहने लगे उत्थे सढौरे पीर बुद्धू शाह नूं साडी चिट्ठी दे दी। ठीक है, ये कर देंगा जी। सढौरे चला गया, पीर बुद्धू शाह नूं चिट्ठी देती। उन्हें चिट्ठी खोली, लिखिया सी भाई इहनूं 6 महीने बन के रख ला, जान नहीं देना, जावे तो सख्ती ना कर ले, किते जाने रोटी पानी भोजन प्रशादा पूरा देना, पर जान नहीं देना। जदों पीर जी ने चिट्ठी पढ़ी, कहने लगे भलिया लोका बह जा, महाराज का हुक्म लिखिया तेन 6 महीने किते नहीं जान देना,
तेरे रोटी पानी कपड़ा लीड़ा थे तेन मिलेगा। हम बड़ा औखा है, औखा सुखाड़ा पे बज गया, की करे मजबूरी। रोए पिटे घरदियां दा नां लै लै के कदे गुरु महाराज नूं माड़ा कहे ते कदे चंगा कहे। 6 महीने बाद गुजर गए, रोंदा पिटदा 6 महीने बाद ਉਹਨੇ मान सन्मान फिर छड्डता भी लै बई 6 महीने हो गए महाराज का हुक्म सी पूरा तू जा। सोचदा रोंदा पिटदा घर आ पिल्लै घर दे ते मर मुक गए होने आ, उत्थे मेथों बिना कौन पालदा है, मेथों बिना कौन, मैं ही आसमान चुकिया हुंदा जिवें सी कदे कदे करदे, मैं करदे, मेथों बिना ते उजड़ गए होने आ। घर आया ते रौनक ही लगी हुई। जिस घर च भंग भुजदी सी उस घर च रौनक लगी है, खुशहाली बनी, खेड़ा लगदा। हैरानी हो गई, डरदे डरदे दहलीज से कदम धरिया। घर दे जी पुछते किधर चला गया से? दसिया, कहने लगे जो महाराज ने कहा चंगा ही किया, चंगा किया, 6 महीने तू नहीं आया। हैरान हो गए, कहने लगे तुसीं तो कोई काम ही नहीं से बच्चे नूं करन दिंदे, जो काम खेती की वो भी प्रफुल्लित हो गई, जिस पासे लगे वो प्रफुल्लित हो गई, बच्चे नूं काम भी मिल गए, इलाके चों पिंड दे लोगों ने बच्चे नूं काम देते, खेती मिल गई, सब कुछ हो गया। 6 महीने च फसल भी भरपूर्ण हो गई है, बच्चे भी कारज ते लग गए ने, जिहड़े वास्ते असीं रो रो के दिन गुजारे करते सां, आ पिछले 4 महीने तुसीं बड़े सौखे खा रहे हो। उत्थे मुड़ आया, कहने लगा सच्चे पातशाह मैनूं समझ नहीं कौतक की है। महाराज कहने लगे तू समझदा सी कि तू ही पालदा। कई बार मैं करके असीं पालना ते दूर अपणियां दे जीवन की राह दी रुकावटां पैदा करदे ने। महाराज कहने लगे ना बह जाया कर, किरत विहार करना तेरा धर्म है, पर बाणी सुनिया कर ते अपने किरते करते नूं कादर जान। असीं सिर्फ उहदे सेवक हाँ। अज यही इसनूं कहा ना, तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे। मैं अक्सर बेनती करदा कि भाई श्री मुखवाक नूं चल रहे विचारनक ते जोड़ के ते देखी, बहुत आनंद है इहदे विच, समग्र ज्ञान संपूर्ण ज्ञान है। कहने लगे मन लो अज इस गल नूं पक्का कि सचड़ा परवदगारो, परवदगार नूं असीं परवरदिगार भी कहने आ, पालनहार भी कहने आ, सरल पंजाबी च प्रतिपालक भी कहिंदे ने। वो वाहिगुरू सच्चा है, उहदी रचना है, उसे ने सिरजना कीती है ते उही पालदा जी, क्योंकि आप सत किया सब सत। अच्छा फिर महाराज जी की असीं की करिए, आले दुआले किवें देखिए? कह लगे होर सुन, जिन आपी ने आप साजिया, आसा की वार च पढ़ते ना, आपी ने आप साजियो, आपी ने रचियो नाओ। कहने लगे जरा को पिछे ध्यान पा, अज तो कुछ समा पहला जदों आला दुआला तेरे को इस बनतरा वडप्पण नहीं होएगा, उदों कुछ होएगा? कहांगे जी हाँ कुछ तो होएगा ही, मैं नहीं होवांगा मेरे वडेरे होणगे। असीं सारे मनदे हां जदों असीं फिलासफी च तारीखी हवालियां तो अलावा ठहर के गल्लां करिए तो जगत गुरु गुरु नानक साहिब जी दे वेले यानी कि सन 1500 के आस पास विच साडी फैमिली चेन चों कोई तो होवेगा ना, वो हैगा सी तां ही असीं अज हाँ। सानू बेशक नहीं पता वो कित्थे रहिंदे होणगे, किन्ना हालतां च रहिंदे होणगे नहीं पता, पर साडी फैमिली चेन चों पिता दा पिता, पिता दा पिता, पिता दा कोई ना कोई तो होएगा ना, तां ही असीं मौके ते मौजूद अज हाँ। तो 1000 साल पिछे और चलो, जदों मनुखता ने आ स्वरूप धारण नहीं किया, कुछ उदों भी तो साडा होएगा ना, असीं तो सदा तो चलते आ रहे हैं। महाराज कहने लगे होर पिछे चल, जदों मनुखता की बनतर नहीं, जी जंती नहीं, उदों भी कुछ होएगा। कहने लगे जो कुछ तो होएगा ना। शमस तबरेज नूं किसी ने पूछया सी, तू खुदा दा कदों दा आड़ी है भाई? तू कहना खुदा मेरा आड़ी है, खुदा मेरा मित्र है, खुदा ही है, तू कदों दा है? कहने लगा जी बड़े पुराने अपने काम ने, किन्ना कुछ चिर हो गया जे 10-20 साल? कहने लगे नहीं बड़े पुराने हैं। कहने लगे कदों दे? फिर भी कहने लगे जदों चांदन नहीं सी उदों दे, जदों सूरज नहीं सी उदों दे, जदों कुछ भी नहीं सी उदों दे। ई कश न बूदम मन बूदम, ये कुछ भी नहीं सी, मैं सीगा। पुछ तू कित्थे सी? कहने लगे खुदा दे विच, मैं खुदा दे विच समाया होया सी, खुदा दी मौज आई, उन्हें मैनूं वखरा करता, प्रगट करता। बस कम तो नहीं है ना। असीं सारे उत्पत परलव शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उपत होवे। असीं सारे शब्द विच करता पुरख च समाए होए सां, करता पुरख दी मौज आई, सानूं वक्खो वक्खरी स्थापना करती,
तो बंदी मौज आनी है, उन्हें वापस बुला लेना है। काम तो इन्ना कु है, खै तो खेड। जिवें निक्के निक्के बाल के मिट्टी के टुकड़े टुकड़े बना के अपने घर बना लेंदे ने, तीले गढ़ के बंदे बना लेंदे ने। थोड़ी देर बाद मिट्टा टूकिया पे चले जाते हैं। बाजीगर जिसे बाजी पाई, सब खलक तमाशे आई। आ बाजीगर हुण तो चलो घट के नहीं, तो पिंडां च आउंदे थैले चों समान कढ़ कढ़ रखी जाते हैं। बादशाह बैठा जी, या राणी बैठी, राजा बैठा, हुंदा तो कुछ भी नहीं है। पर थोड़ी देर बाद सारा समेट के अपने पिटारे च पा के तुर पैंदा। इस तरह महाराज कहने लगे, करते ने अपने आप तो ही इस सारी रचना रची जे। करते ने हुण इहदे बारे साडे को असीं कह नहीं पांदे। वडेरे कहिंदे ने कि करते ने ख्याल कीता बन जाओ, कुदरत बन जाए, कुदरत बन गई। दशमेश ने एक बहुत बारीक जिहा सूत्र दिता है, पढ़िया तो आपां रोज़ होना है, 2 बार कोई पाठ नितरेम च कीता जाता है। कदे उसनूं समझण की कोशिश करना दी गहराई नूं। जब उदकरख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। उदकरख, उदकरख कहते ने फैलाव करना। जिवें आपां अपने अंदर फेफड़िਆਂ 'ਚ ਸਾਹ भर लईए तो साडे सीने का जो व्यास है फैल जाता है, शरीर फैलन लग पैंदा अगर हवा भर ली जाए। उदकरख है शरीर का फैलाव करना, अपना फैलाव करना। जब उदकरख करा करतारा, फिर की होया, क्योंकि प्रजा धरत तब दे अपारा, सारी कायनात बन गई। अच्छा, कुछ समय बाद उन्हें साह छड्डता, अपने शरीर में संकोच लिया, तो फिर की होगा। जब उदकरख करा करतारा, प्रजा धरत तब दे अपारा। जब आकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। तुसीं फैलाव किया, रचना रची गई। तुसीं संकुचन करते हो, सारी रचना खत्म हो जाती। काम इन्ना किया, बस एक साह ही बहुत है। जिवें साडा साह अपने शरीर की बनतर बनाने वास्ते ते शरीर नूं संकोचन वास्ते एक लंबा साह ही काफ़ी होंदा है, इवें समझा करता पुरख वास्ते एक लंबा साह ही सब कुछ है। साडे लई सदियां गुजर जांदियां ने, पर उत्थे ते एक साह लैण दे काम है ना, इन्ना की काम है। उन्हें साह लिया, अपना फैलाव किया, रचना रची गई। उन्हें साह छड़ता, संकुचित हो गया। सारा संसार शरीर धारी जितने भी ने आकार वाले समा के किधरों आए सी, जिन्हों परलय कहिंदे ने। परलय का मतलब की हुंदा है? लय, किसी दूजे दे विच समा जाना। असीं तुसीं तुरे फिरदे हां, पर लय जिथों प्राप्त होए सां उहदे विच ही समा गए। महाराज के लगे समझ लेना, जिन आपी ने आप साजिया। फिर कित्थे कह लगे, कुदरत दे विच अपना बनाया। जिन आपी ने आप साजिया, सचड़ा अलख अपारो, वो सच्चा वाहिगुरु अलख जे। अलख का मतलब जिसनूं असीं लक्ष नहीं पर देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, देख के समझ नहीं सकते। एक दूजे नूं देख के असीं अंदाज़ा ला लैंदे हां भी इहदी हाइट कितनी कु है, इहदी उम्र कितनी कु है, इहदा वजन कितना कु है। असीं देख के अंदा ही लख है, अंदाज़ा लग गया। पर करता पुरख दे बारे देखते हाँ, पर की अंदाज़ा लावांगे? कितना कु देखते हैं, जितना को दिखांदा असीं देख लेने, असीं ना पूरा देख पाए ना पूरा सुन पाए। इस करके करता अलख है, वो सिरजनहारो है। कहणगे अलख है ते अपार है। चेता रखना, दोए पुड़ जोड़ विछोड़े अन, गुर बिन घोर अंधारो। दो पुड़, आ धरती दा ते स्पेस दा। जिवें आ चक्कियां दे दो पुड़ होंदे ना, जिहदा करके सारी बनतर बनती है। असीं दाणे पिसाण जाने आ, पहलां घरां च पी लैंदे सी, तां भी दो पुड़ सी कि ना। महाराज इस आकाश ते इस धरती नूं दो पुड़ कहिंदे ने। दो पुड़ जोड़ विछोड़े होण, इहदे विच सारी कुदरत बना दित्ती, इहदे विच सारी कायनात सिरज दित्ती है। इहदे विच ही सूरज चंद तारे। आका एक थां बड़ा प्यारा बचन है ना, वो जो दिसे अंबर तारे किन्हे चीते चीतन हारे। आख किसी ने टंगे नहीं ना, पर दूजे थां एक वचन है, बिन थम्मा गगन रहाया। फिर कोई पिलर नहीं, कोई स्पेस नहीं, धरती नूं ठुमना कोई नहीं, किसी नूं भी ठुमना कोई नहीं। आ हुण ते विग्यानक तकनीकां दे नाल असीं बहुत कुछ देखते हाँ,
पर कदे वेख्या किसी ने कोई ठुमना, किसी ने कोई सहारा, सब अपने अपने थां ते टंगे ने। ठीक है, ज्ञान विज्ञान उसनूं समझण वास्ते ग्रैविटी ते स्पेस पावर्स के नाम नाल जानने की कोशिश कर रहा है। कोशिश ही है ना, दावे तो नहीं उन्होंने भी। वो पहला ग्रैविटी ते काम करते रहे ने, हुण ग्रैविटी तो काम करते करते उस स्पेस पावर ते काम करन लग पे ने कि ग्रैविटी तो भी एक पावर होर वड्डी भी हैगी है जो सारे ब्रह्मांड विच एक है। ग्रैविटी तो अलग अलग दायरे में सीमित है, ये तो धरती की अपनी अलग है, अलग ग्रह की अलग लगता है, पर सारे ब्रह्मांडी पसारे दे विच एक होर पावर भी है जो उस ग्रैविटी नूं भी कंट्रोल करती, जिहदे सदके ग्रैविटी है। हुण सुपर पावर वाल तुर पे ने, वो लभदे रहणगे, काम है उन्हां दा। पर सच जरना कुछ है तो ना, गुरु नानक इस ते हुक्म कहिंदे ने, वो हुक्म है, हुक्म दे विच है ना। अज कल के दो पुड़ जोड़ विछोड़े हैं, आ दो धरती ते आसमान का जो पुड़ ने इहदे विच विछोड़ दिते ने, सन लगदा मिल जाणगे पर कदे मिले नहीं। इहदे विच करते ने अपने रचनात्मक पक्ष नूं सिरजना कीता है, और इहदी समझ गुरु तो बिना नहीं जी आउंदी। गुर बिन घोर अंधारो, इहदे दरम्यान कितने कु चंद सूरज तारे होणगे, इन्ना कुछ हो जाण दे बावजूद भी साडे मन विच अंधकार है। असीं तां एक सूरज दे बारे जाणदे हां, अज ज्ञानी विग्यानी जाणदे ने साडे इस सूरज वर्गे पता नहीं कितने कु होर सूरज ने, शायद जो इह तों ज़्यादा पावरफुल ने, उन्हां दी लाइट रोशनी ज़्यादा है, उन्हां दा सेक ज़्यादा होएगा, पर साडे तक तो कोई काम नहीं ना। जे तू 10 नहीं लख भी सूरज वड्डे होण, इनकार तो असीं नहीं कर पाए, पर साडे काम ते नहीं आए ना। साडे काम ते एक माटा मोटा हुंदा है, पर वो भी साडे अंदर साडे हिरदे चों भी रोशनी करदे, जिसनूं कहने आ गुरु तो बिना जे 100 चंदा उगवै हैं, सूरज चढ़े 1000, एते चानण हुंदिआं गुर बिन घोर अंधार। इहनूं कहंदे ने गुरु तो बिना घोर अंधकार है, भावें एक नहीं लखां होर सूरज चमक पैण, ते चमक ही रहे ने ना ब्रह्मंड विच, पर साडा राह रोशन थोड़ा हो रहा है। साडे अंदर ते अज्ञानता दा अंधकार गुरु ही दूर करते हैं। कहने लगे गुर बिन घोर अंधार, फिर समझाता सूरज चंद सिरजन, भाई उन्हें सूरज की रचना की, चंद की रचना की, अहनिस चलत विचारो, और सूरज चंद सदके दिन रात का सिलसिला बनया। अज तक ज्ञान विज्ञान च मत भेद बनया रहे ना, कदे कहंदे सी धरती स्थिर है तो सूरज चक्र कटदा है, अज विज्ञान ने कहता नहीं जी सूरज स्थिर है, धरती चक्र कटदी है। तो कल खबरे कोई होर नवा ख्याल आ जाएगा, कह देगा अपनी सूरज ते धरती दोनों चलते हैं, कोई होर इन्हां तो महासूरज भी हैगा है, उहदे दुआले चक्कर कटते हैं। ज्ञान विज्ञान सानू कुछ नहीं पता, इस ब्रह्मंडी पसार च की है तो किन्ना कुछ विशालता है सानू नहीं पता। पता नहीं आने वाले समय कोई कह देन भी बहुत वड्डा महासूरज है, देखो जी दे वर्गे सारा ब्रह्मंडी तारे उहदे आले दुआले घूमते ने, घूमते तो है ने। आ वेखे हुण आपने कदे कदे बजुर्गों के मुताबिक ही सही, आसमान साफ होवे ना, जिवें अजकल थोड़ा जिहा मौसम साफ हुंदा है, शाम के 7-8 बजे देखना ध्रुव तारा किते टिकिया हुंदा है, बाकी तारिਆਂ की दशा ਨੂੰ देख लेना, तो सवेरे सूरज चढ़न तो लौ लगन तो पहला फिर देख लेना, ध्रुव तारा उत्थे ही हुंदा है, तो बाकी सारे तारिਆਂ की दशा बदल चुकी हुंदी है। चलो कोई ज्ञानी कहेगा साड़ी धरती की दशा बदल गई है, पर चलते रहा ना सब कुछ। एक ध्रुव अटल है, इसका मतलब जे एक ध्रुव अटल है तो कोई ऐसा केंद्र है ब्रह्मंडी पसारे विच जो अटल है, जिहदे आले दुआले सारा ब्रह्मंडी पसारा परिक्रमा कर रहा है। कुछ तो ऐसा है ना जिहदे बारे साडा ज्ञानी साडा विज्ञानी अजे नहीं पकड़ पाया। महाराज कहते हैं वो सारा कुछ की है, वो करता आप है। ये सारा ब्रह्मंडी पसारा करते दे हुक्म दे विच चल रहा है। शिराग के पहले बचन जिहड़े बड़े गंभीर ने, कदे समा लगे ना श्री राग नूं ठहर के पढ़िए, उस बचन बड़े प्यारे प्यारे ने, क्योंकि गंभीर फिलासफी श्री राग दे विच है। दिन रब चलै निस सस चलै, सारा दिन सूरज के मुताबिक चलीदा, सूरज चलदा, असीं कहते हैं सूरज चलदा। सारी रात चंद्रमा के मुताबिक कार विहार चलदा है। दिन रब चलै निस सस चलै, तारका लख पलोए। पर अगे की कहते हैं
मुकाम ओही एक है, नानका सच बुगोए। अते मुकाम कर वैसना निचलना की तोक। मुकाम जो टिकया होया एक है, सारा ब्रह्मंडी पसारा उसे एक मुकाम दे आले दुआले घुमदा है, उहदी परिक्रमा करदा है। कह लगे सूरज चंद सिरजन अहनिस चलत विचारो, दिन रात इन्हां दा चलत है, दिन रात कौतक है, दिन रात चलना है, दिन रात दा विचार सूरज चंद सदकी हो रहा है। की करिए फिर? कह लगे सचड़ा साहिब सच तू, सचड़ा देह प्यारो। हे सच्चे पातशाह तुसीं सच स्वरूप हो। सचड़ा साहिब सच तू। हे वाहिगुरु जी तुसीं सच हो, सच्चे साहिब हो। सचड़ा देह प्यारो, ते तुहाडा प्यार भी सच्चा जे। साडा तुहाडा प्यार कई वार नकली हुंदा है। असीं हिरदे 'च कुछ होर ते उठ बड़े मिठे मिठे बोल बोलदे हां, असीं बड़ा प्यार प्रदर्शन करते हैं, पर हिरदे 'च ते नफरत हुंदी कई बार। पर उत्थे नहीं है, उत्थे प्यार सचड़ा प्यार है, करते दा प्यार सचड़ा है। इसे करके भगत जन कहिंदे ने कि करते दा दर खुलिया, ते जे तूं धक्का भी पै जाए ना, वो भी प्रेम दा होना चाहिए। असीं तुसीं सधारण जी हाँ, कहने दर खोले तो सानू बख्शिशां मिलन, मैनू पदार्थ मिले। भगत जन कहने कोई गल नहीं, दर खुलना चाहिए है। दर खुलिया, भावें उन्हें आके साड़ी झोली 'च कोई पदार्थ पा दिता, तो भावें किसी वक्त उन्हें तक के परां कर दिता, जे उन्हें परां भी कर दिता तो समझ लो बख्शिश ही है। भावें धीरक भावें धक्के, एक वडाई दे, कुछ तो मिलेगा ना, एक वड्याई तो मिल गई ना, क्योंकि मेरे वास्ते बाहर ते आया है। भावें धक्का मार नहीं आया, सही चल के ते आया। यही तो दी कृपा है कि मेरे वास्ते चल के मेरे तक आया है, मेरे कोल तक आया है। अज इसे करके सतगुरु कहते हैं ये दुख ते सुख की दात है। जिन्हों असीं दुख कह देने, जिन्हों असीं सुख कह देने, उसकी मौज है। भावें धीरक दे रहा, भावें धक्का दे रहा, सानू लगता भी दुख मिल रहा है, पर उसकी तो दात है। जिवें निक्के निक्के बालके उन्होंने लगता कदे कदे, अज मनोविज्ञान पढ़ते पढ़ाते हो ना, कदे कदे बच्चे नूं लगता कि मां दुश्मन हो गई है, ये सौण नहीं देंदी, खेडण नहीं देंदी, वो सौना हुंदा तो उठा देंदी है, खेडना हुंदा तो सुआ देंदी है। साडे घरां च इदां ही हुंदा है ना। पर की मां दुश्मन है? नहीं, मां प्यार करती है, वो चाहती है तरक्की करे, इस करके कदे धक्के नाल सुआ रही है तो कदे धक्के नाल उठा रही है। ਉਹਦੇ दोनों कर्मां दे विच प्रेम ही है। करते पुरख दे दुख ते सुख दे विच प्रेम ही है। गुरुदेव किरपा करन असीं इत्थे टिक सकीए। सचड़ा साहिब सच तूं, सचड़ा देह प्यारो। हे सच्चे पातशाह तुसीं सच स्वरूप हो, तुसीं आप सच हो, तुहाडी बनतर सच है ते तुहाडा प्यार भी सच ही है। ਉਹਦੇ रूप कितने ने ਇਹਦੀ व्याख्या ਅਸੀਂ नहीं कर पावांगे, ना साडे कोल दी व्याख्या है। ਅਸੀਂ तो मनना ही है। गुरु नानक कहते हैं जो भी तैनूं मिलता है तो उस मन ले, ये तेरी दात है। धन गुरु तेग बहादुर बचन से बहुत बार पढ़िया जाता ना, जो नर दुख मैं दुख नहीं माने, दुख भी मिले तो ना पाई, महाराज तेरी दात है। गुरुदेव किरपा करन असीं स्वीकार कर सकी, भाणे नूं मन सकीए, हौली हौली जिंदगी दे इस मुकाम की समझ आ जाए। भुल चुक दी खिमा, आसीस ते प्यार दे फतेह बुलावना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।